ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਘੁਮਾਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਟਰੈਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ 4 ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਭੇਦਾਂ ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸ਼ਬਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਬਹੁ ਸ਼ਬਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ ਸ਼ਬਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਸ਼ਬਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਪੱਖੋਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ 8 ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ 6ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। 7ਵੀਂ ਹੈ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਜਾਂ ਤਾਕੀਦੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅੱਜ, ਕੱਲ, ਪਰਸੋਂ, ਹੁਣੇ, ਭਲਕੇ, ਸਵੇਰੇ, ਰਾਤੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
हर रोज शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की दूसरी किस्म का नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो क्रिया विशेषण हुंदा है, क्योंकि सानू पता है स्थान का अर्थ है जगह, थां ठिकाना। जिन्हां शब्दां तो क्रिया दे होण दे स्थान का पता लगता है, जगह का पता लगता है, थां ठिकाने का पता लगता है, उसनूं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह क्रिया विशेषण किसी खास पासे जाण की हालत दर्शाउण लई वरते जाते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जिवें अंदर, बाहर, सज्जे, खब्बे, इधर उधर, इत्थे, उत्थे, दूर, नेड़े आदि शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिवें साडे कोल वाक है बच्चे मैदान विच खेड रहे हैं। असी दिते हुए वाक विच कित्थे शब्द लगा के, कित्थे प्रश्नवाचक शब्द है, असी दिते हुए वाक विच कित्थे प्रश्नवाचक शब्द लगा के स्थानवाचक क्रिया विशेषण नूं लभ सकते हाँ। किवें? जिवें वाक है बच्चे मैदान विच खेड रहे हैं। इस वाक विच कित्थे प्रश्नवाचक शब्द लगाया तो वाक बन गया बच्चे कित्थे खेड रहे हैं। उत्तर मिलिया मैदान विच। इस तरह मैदान शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की तीसरी किस्म का नाम है प्रकारवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण। प्रकारवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण की है? प्रकार का अर्थ है विधि या ढंग तरीके। जिस शब्द तो क्रिया दे होण दे ढंग तरीके या प्रकार का पता लगता है उसनूं प्रकारवाचक क्रिया विशेषण या विधिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिवें बहुत सारे शब्द हैं हौली, तेज, काली, अचनचेत, अन्नेवाह, निरंतर, गटागट, जल्दी, धड़ाधड़, छेती, सहजे आदि शब्द प्रकारवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण हैं। विधिवाचक क्रिया विशेषण की पछाण का सौखा तरीका यह है कि दिते हुए वाक विच किवें प्रश्नवाचक शब्द लगा के जो उत्तर मिलता है वह प्रकार या विधिवाचक क्रिया विशेषण है। जिवें वाक है बच्चा हौली हौली बोलता है। जदों इस वाक विच असी किवें शब्द जोड़ते हाँ तो वाक बन जाता है बच्चा किवें बोलता है। उत्तर मिलता है हौली हौली। इस तरह हौली हौली शब्द प्रकारवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की चौथी किस्म है कारणवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द तो किसी क्रिया दे होण या ना होण दे कारण का पता लगे उसनूं कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिवें क्यों, क्योंकि, इसलिए, इस करके, इस तरह, इस वास्ते, किंज, किद्दां आदि शब्द कारणवाचक क्रिया विशेषण हैं। कारणवाचक क्रिया विशेषण वाले वाक जिवें आपां वाक लिखिया है मैं स्कूल देर नाल आया क्योंकि रस्ते विच मेरी गड्डी खराब हो गई सी। इस वाक विच कारण है। की कारण है? स्कूल देर नाल आउण दा कारण है रस्ते विच गड्डी दा खराब हो जाना। सो इस वाक दे विच क्योंकि शब्द कारणवाचक क्रिया विशेषण है जो कारण दस रहा है। क्रिया विशेषण की पंजवीं किस्म का नाम है मिणतीवाचक या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या मिणतीवाचक क्रिया विशेषण की है? जिस शब्द तो किसी क्रिया दे परिमाण, मिणती, मिकदार या मात्रा का पता लगे, उसके माप तोल का पता लगे, उसनों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या मिणतीवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिवें थोड़ा, बहुत, किन्ना,
जरा कु, बड़ा ही आदि शब्द मिणतीवाचक क्रिया विशेषण हैं। इस क्रिया विशेषण की पहचान असी दिते हुए वाक विच प्रश्नवाचक शब्द किन्ना लगा के कर सकते हाँ। जो उत्तर मिले वो परिमाणवाचक या मिणतीवाचक क्रिया विशेषण हुंदा है। जिवें साडे कोल वाक है थोड़ा जिहा पिछे हो जाओ, जदों इस वाक विच किन्ना प्रश्नवाचक शब्द लग्या तो वाक बन गया किन्ना पिछे हो जाओ, उत्तर मिलिया थोड़ा जिहा। इस तरह इस वाक विच थोड़ा जिहा शब्द परिमाणवाचक या मिणतीवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की 6वीं किस्म का नाम है गिणतीवाचक या संख्यावाचक क्रिया विशेषण। जिहड़े शब्द तो क्रिया की वारी या दोहरा का पता लगे, गिणती का पता लगे, उसनों संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिवें एक बार, कई बार, वार वार, अनेक बार, घड़ी मुड़ी, दोबारा आदि शब्द गिणतीवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिवें साडे कोल वाक है तुसी दूजी वार उत्तर लिखो। इस वाक दे विच जदों असी प्रश्नवाचक शब्द किन्नी लगाउंदे हाँ तो सानू जो उत्तर मिलता है वो साडा गिणतीवाचक या संख्यावाचक क्रिया विशेषण है। जिवें प्रश्न बनता है इस वाक विच है आपां प्रश्न बना के इसनूं लिख सकते हाँ किन्नी बार उत्तर लिखो, तो सानू उत्तर मिलेगा दूजी बार। सो इस वाक विच दूजी बार शब्द गिणतीवाचक या संख्यावाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की 7वीं किस्म का नाम है निर्णयवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द तो किसी क्रिया दे होण या ना होण, कीते जाण या ना कीते जाण बारे निर्णय के रूप विच, फैसले के रूप विच कोई सूचना मिले उसनूं निर्णयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिवें हाँ, ना, हाँ जी, अच्छा जी, चंगा जी हाँ आदि शब्द निर्णयवाचक क्रिया विशेषण हैं। निर्णय या फैसला हाँ पक्षी भी हो सकता है अते ना पक्षी भी हो सकता है। जिवें साडे कोल 2 वाक हैं। पहला है जी हाँ तुहाडी आग्या सिर मत्थे। ये वाक हाँ पक्षी फैसले नूं दसदा है। दूसरा वाक है जी नहीं मेरे कोलों ये काम नहीं हो सकता। ये वाक ना पक्षी फैसले नूं दस रहा है। क्रिया विशेषण की 8वीं अते आखिरी किस्म का नाम है निश्चयवाचक या ताकीदीवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द तो क्रिया बारे निश्चय या विश्वास या भरोसे या पक्याई के भाव प्रगट होण उसनूं निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिवें बहुत सारे शब्द हैं जरूर, बेशक, बिल्कुल ठीक आदि शब्द निश्चयवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिवें साडे कोल वाक है तुसी यह काम जरूर करोगे। इस वाक विच जरूर शब्द निश्चयवाचक क्रिया विशेषण या ताकीदीवाचक क्रिया विशेषण है। सो ये सी शब्द भेद का 5वां रूप क्रिया विशेषण अते इस दियां किस्मां। शब्द भेद का 6वां रूप है संबंधक। संबंधक बारे नवी वीडियो लैके जल्द हाजिर होवांगे। तद तक लई रब राखा।